Assalamu alaikum. This is topical of descriptive geometry, past papers, and the first paper is 2024, and this is question number 8. First, let me read the question. In the given diagram, ABCD is a parallelogram. You can see that there ABCD, this is a parallelogram. Okay, this is the first information. Let me write over here. This is the first information. A parallelogram, and the side BC of the parallelogram is passing through the midpoints AE and ED. This is second information. Okay, so this is the line. First, this is a rectangle. It means that these lines are congruent and parallel to each other, and these opposite sides are congruent and parallel to each other. Okay, this is first information, and the second information is BC. This is BC. BC is passing through the midpoints of AE and ED. Okay, these are the midpoints of this ED and this AE. Okay, now let me remove all these things. And what is being asked? Find the length of AD. We need to find out the length of AD. ठीक है, तो यहाँ जो आपका थ्योरम यूज हो रहा है वो थ्योरम ये है कि इफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल वुड बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी. एंड व्हाट वुड बी द रिलेशन? BF की जो लेंथ है AD की लेंथ उससे डबल होगी. ओके, the length of the AD would be double the length of the BF. So what would be the length of AD? Here the length of BF is 5 centimeters. So the length of AD would be equal to 5 multiplied by 2 is equal to 10. Okay, so we can find out the side of AD by multiplying 5 by 2. So we can write over here, this is the theorem. Here BF is parallel to AD, and according to the theorem AD equals double of BF. Okay, that would be 2 multiplied by 5 equals 10 centimeters. This is the length of AD. AD equals 10 centimeters. Okay, so this is the length of AD. Now we are going to find out length of BE. Here you can see that BC divides AE into two equal parts. Okay, this BC divides BE in two equal parts. Okay, and you know that AB would be parallel to DC. Okay, AB would be parallel to BC, and whatever would be the length of AB would be equal to the length of BE. Okay, because this is the midpoint. So first I will write here AB parallel to DC. Why is it so? Because this is a parallelogram. It means that we can write AB congruent to DC, which is equal to 5 centimeters. So this is the length of AB. Okay, because BC is the bisector of A. So we need to find out the value of BE. So BE would be equal to congruent to AB. And what is AB? AB is 5 centimeters. So you will write here 5 centimeters implies that BE would be equal to 5 centimeters. This is your answer. Okay, now we are going to find out
the value of CF. What it would be CF? If this is 10 centimeter, okay, and this is 5 centimeter, and this is, you know that AD is the double of BF, ठीक है। तो अगर हम इस 10 सेंटीमीटर में से यानी BF को सब्ट्रैक्ट कर दें AD में से, ओके, बिकॉज BC की और AD की लेंथ बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं AD में से BF को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ FC. सो आई विल राइट हियर FC equals AD minus BF equals 10 minus 5 equals 5 centimeter. What is the reason? AD is congruent to BC. Okay. So after subtracting BF from AD, we can get the value of FC, and FC is 5 centimeters. Write down over here, 5 centimeters. So this is the next question of 2024. Sarah was playing with a thread connecting two pins on a softboard. ये 4 पिन्स जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है, एक सॉफ्टबोर्ड के ऊपर V, W, U, X एंड W, ठीक है, ये 4 पिन्स हैं। और उसमें इसने क्या किया है कि एक थ्रेड को पूरे के ऊपर यहाँ इस तरीके से इसने टाई कर दिया, ठीक है, ऐसे इसने इसको टाई कर दिया है लाइक दिस। She measured the threads connecting the pins as VW की वैल्यू जो है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है। Where is VW? This is VW 7 सेंटीमीटर। 3 मेजरमेंट्स आपको दी हुई है। UX जो है वो 4 सेंटीमीटर है, UX is 4 सेंटीमीटर एंड WY is 3 सेंटीमीटर। Where it is WY? W and Y is of 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3 मेजरमेंट्स आपको दी हुई है, ओके। नाउ she observed that the angles UVX and WVX were equal in measurement. UVX, this is here, and WVX, this is here. ये दोनों की मेजरमेंट्स जो है वो सेम है। इट मीन्स दैट दिस इज द VX is the angle bisector of these two angles, okay, and the thread XV bisected the thread connected to UW at right angle. और ये जो आपके पास जो ये वाली लाइन है ये U और W को bisect कर रही है परपेंडिकुलर राइट एंगल के साथ। इट मीन्स दैट दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। VX is the perpendicular bisector of UW. Okay, I hope that you understood that what is going on over here. Now let me start the question. Find the length of the threads connecting U and V. U and V. We need to find out this measurement. Okay, ठीक है। तो let me write over here. This is a UV. अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ कौन सा रूल यूज हो रहा है? दिस इज द लाइन विच इज बाइसेक्टिंग दिस लाइन इनटू 2 पार्ट्स परपेंडिकुलरली। दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन यूवी। तो ये कौन सा वाला थ्योरम है? अगर आप देखें तो अगर एक लाइन है जो यूडब्ल्यू को बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली, ओके, VX इज अ लाइन which is bisecting UW perpendicularly. तो अब आप यहाँ कह सकते हो कि if you will take any point on this line would be equidistant from the end points of UW. ओके, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्विडिस्टेंट होंगी इस पॉइंट से, और ऐसे ही ये दोनों लाइन की जो लेंथ्स होंगी वो भी दोनों आपस में इक्वल होंगी। लाइकवाइज अगर आप यहाँ x पॉइंट यहाँ बना रहे हैं और अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला रहे हैं तो ये भी चूंकि कि ये लाइन बाइसेक्टर के ऊपर है, दिस इज लाइन बाइसेक्टर, ओके, दिस इज लाइन बाइसेक्टर। तो इस लाइन बाइसेक्टर पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो इन एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। ये लेंथ्स बराबर होंगी, ये लेंथ्स आपस में बराबर होंगी, ओके। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि इफ इट इज ऑफ 7 सेंटीमीटर दैट वुड ऑल्सो बी ऑफ 7 सेंटीमीटर।
If it is of 4 centimeter, that would also be of 4 centimeter. And likewise here, if it is of 3 centimeter, that would also be of 3 centimeter. तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, UV equals VW equals 7 centimeter. Okay. Now, the second question, which is find the length of the threads connecting W and X. W and X. That would be equal to WX किसके equal होगा, WX if we are going to find out, that would be equal to 4 centimeter. Okay. So UX you will write it like this, that would be 4 centimeters. ये आपका हो गया second. और third क्या है आपके पास, what would be the minimum length of thread required to connect U and W. आपको ये वाली length find out करनी है. Okay. You need to find out this length and that would be equal to U Y plus YW. Okay. UY plus YW. You need to find out UW and UW would be equal to this. Okay. अब आपको पता है UY आपकी ये वाली लेंथ किसके इक्वल होगी, अभी मैंने आपको बताया दिस इज 3 सेंटीमीटर, दैट वुड आल्सो बी ऑफ 3 सेंटीमीटर. सो यू विल राइट हियर 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर equals 6 centimeter. Okay, that's all for part B. Now this is part C of the same question. In the given diagram, AE is equal to 9 centimeters, EC is equal to 6 centimeters and DE is equal to 12 centimeters. BC is equal to 20 centimeters. Okay, so you can see that there are two triangles. एक आपके पास ये triangle है. Okay, this is the triangle and the second triangle is, okay, तो ये आपका सी पार्ट है. इन द गिवन डायग्राम AE is equal to 9 centimeter, EC is equal to 6 centimeter, DE is equal to 12 centimeter and BC is equal to 20 centimeters. And the question is prove that the triangles ADE, triangle ADE, there are two triangles. You can see this is ADE, ठीक है, and ABC, AB and C. There are two triangles. ठीक है, एक ये वाली ट्राइंगल है जो बीच में है इधर, और एक ये आपकी पूरी कंप्लीट ट्राइंगल है. ठीक है, आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं. इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दिस इज हियर, so this is the theorem. If two triangles are similar, the measure of their corresponding sides are proportional. ठीक है, so if there are two triangles like this, अगर मेरे पास दो triangles हों, एक ये triangle है और एक ये triangle है, and I am going to prove that these two triangles are similar. So what would I do? यहाँ जो आपकी corresponding sides होंगी, ये वाली side और ये वाली side, if it is ABC and this is DEF, okay, तो ये अगर आप इसके proportionals ले लें, proportionals means you will write it like this, AB upon DE, corresponding sides को आपने इस तरह अपॉन में लिख लेना है, दोनों के रेशियोज ले लेने हैं. तो AB और DE के दरमियान में जो रेशियो होगा that would be equal to the ratio in between AC and DF, okay, and BC, the third side, and the third side corresponding side of the next triangle would be equal to EF. Okay, तो यहाँ अब हम देख रहे हैं पार्ट सी में. इन द गिवन डायग्राम AE 9 सेंटीमीटर, EC DE, ठीक है. तो यहाँ अभी जो हमने थ्योरम किया, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम वी कैन राइट इट लाइक दिस. यहाँ हम लिख सकते हैं DE, ठीक है, DE एंड BC, देयर वुड बी अ रेशियो इन बिटवीन दीज टू लाइन्स. कैसे लिखेंगे, DE अपॉन BC, ओके, इक्वल्स AC अपॉन AE अपॉन AC. ओके, दोनों साइड्स के अंदर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के अंदर रेशियो बनेगा. ठीक है, AE अपॉन AC.
So the value of DE is 12 and the value of BC is 20 and the value of AE is 9 centimeters and the value of AC, we need to find out the value of AC, and the value of AC will be equal to AE plus EC. Okay, so what it would be, AE plus EC, and that is 9 upon AE plus EC. 6 2s are 12, 13 14 15, that would be 15, 12 upon 20. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी 9 multiplied by 20 and 15 multiplied by 12, that would be 180 and 180. Because both the ratios are same, you can see here दोनों 180 180 इक्वल आए हैं, तो ये दोनों रेशियोज चूंकि के सेम निकल रहे हैं, so we have proved that ADE, triangle ADE and triangle ABC would be similar. Okay, now this is the paper of 2023. ठीक है, तो यहाँ question is that question number 8, in the given diagram OM equals OP, OL equals OR. OM, where it is OM, this is OM. okay, OM और OP जो है वो आपस में इक्वल है, और OL और OR these are equal to each other. ठीक है, अच्छा, in the correspondence triangle MOL and the triangle POR. Okay, here in the correspondence triangle MOL and triangle POR, we need to find out unknown angle R. ठीक है, मुझे unknown angle R जो है वो find out करना है, this angle. Okay, and how would we find out? Let us see. So there are two triangles. Okay, there are two triangles, this triangle and this triangle. ठीक है, if this angle is of 95 degree, that would also be of 95 degree. Why? Because these are vertically opposite angles. ठीक है, तो ये हमारे पास 95 आ गया, ये हमारे पास 55 आ गया. We can find out angle R. How would we? Sum of the angles of a triangle is equal to 180 degree. So that is 95 plus 55 plus angle R equals 180 degree. Sum of angles of triangle. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? plus angle R equal 180, and we need to find out angle R, which is 180 minus 150, that is of 30 degree. Angle R आपके पास आ गया है 30 degree. Okay, this is of 30 degree. यहाँ तक समझ आ गया है, आगे चलते हैं. This is here. Find the unknown angle M. Now we are going to find out angle M. Okay, so you can see that these are two triangles, this triangle and this triangle. ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस है MOL एंड POR, तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब हो सकती हैं? देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो दिस इज साइड, both the angles are same, 95 and 95 angles are same. Okay, AA, and these sides are same, it is given over there. OL and OR both are same. तो यहाँ आपके पास ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल हो गई है, तो दैट इज द पोस्टुलेट ऑफ SAS. ओके, कॉन्ग्रुएंट टू SAS. तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे को के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. सो आई कैन राइट इट SAS पोस्टुलेट. ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं एक दूसरे के, और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है, तो अगर हम इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखें तो एंगल M वुड बी मैप्ड ऑन टू एंगल P. ठीक है, तो जो एंगल M है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल P वुड बी इक्वल टू वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M.
और आपके पास एंगल M वुड बी इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, तो आपके पास एंगल M की वैल्यू आ गई है इस तरह 55 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure x and y are the midpoints of uv and wv, ठीक है, x and y are the midpoints of uv and wv, ओके, ये इसके midpoints हैं। अब हमें मालूम क्या करना है, if uw is equal to 26 centimeters, uw 26 centimeter and xy x plus 5 centimeter, then find the value of x, we need to find out the value of x। अब अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा वाला थ्योरम यूज हो रहा है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यू कैन सी दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये वाली ट्राइंगल और इनसाइड ट्राइंगल। अच्छा, अगर हम यहाँ थ्योरम देखें तो कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है कि अगर दो साइड्स हों ट्राइंगल की और इनके मिड पॉइंट्स को एक लाइन जो है वो ज्वाइन कर रही हो, तो दैट लाइन वुड बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ये वाली जो लाइन होगी वो इस थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होगी, ठीक है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एक्स वाई भी कह सकते हैं आप, और यू कैन राइट इट लाइक दिस कि एक्स वाई जो है वो आपका हाफ ऑफ द यू डब्ल्यू होगा, ओके, ठीक है। सो चाहे आप ये इक्वेशन यूज करें चाहे ये, बोथ वुड बी करेक्ट। तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, यू डब्ल्यू इज 26, दैट इज द रिलेशन, एंड 2xy x plus 5 द लेंथ ऑफ द लाइन xy, ठीक है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, आई विल राइट इट लाइक दिस, 2x plus 2 5s are 10 is equal to 26 and 2x is equal to 26 minus 10, this is 16 by 2 and that is 8. Recalling the statement of a relevant theorem, complete the given sentence, xy and uw are lines, xy and uw are the lines which are parallel to each other, okay. So fill the blank with parallel. So this is part C. In the given diagram, PL is equal to PN is equal to x centimeter. ये जो दोनों लेंथ्स हैं आपके पास वो सेम है, ठीक है। PL और PN दोनों लेंथ्स जो हैं वो आपके पास सेम है, ठीक है। एंड KN is perpendicular to ML, ये जो KN है ये आपका परपेंडिकुलर हो रहा है ML के ऊपर, ठीक है। If KN is equal to y centimeter, ये जो पूरी लेंथ है आपके पास, this is of y centimeter, ठीक है। और हमें क्या मालूम करना है, वी नीड टू फाइंड आउट, देन फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम K टू ML, ठीक है। K से K इज अ पॉइंट, अगर मैं यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूं ML के ऊपर, ठीक है, ML इज अ लाइन एंड दिस इज सपोज अ पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट K से इस ML का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो दैट वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन ML, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। तो ये अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर बिकॉज दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज ऑल्सो दैट वुड बी 90 डिग्री, दैट वुड बी 90 डिग्री एंड दैट वुड बी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो गया है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस K से लेके P तक हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, KP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, वुड बी इक्वल टू, अगर मैं KN में से सबट्रैक्ट कर दूं PN, okay, PN. What is KN? KN लेंथ जो थी वो आपकी y थी, I will subtract x from it, okay. अगर मैंने इसमें से x को subtract कर दिया है, that would be the expression for the shortest distance, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। This is next year 2019 and this is the question given over here. In the given figure, ABC is a triangle. ABC is a triangle and sum of all its sides are 30.56. यानी अगर मैं इस साइड को और इस साइड को सबको ऐड कर दूं तो दैट इज 30.56 सेंटीमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AB। मुझे इस साइड की लेंथ निकालनी है, ओके। आई नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस साइड, हाउ वुड आई, ठीक
ठीक है, मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी है, और दिस इज ऑफ 80 डिग्री, दिस इज ऑफ 50 डिग्री, एंड फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द दिस एंगल। ओके, तो यहाँ हम रूल यूज करेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट वुड बी 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल C is equal to 180 degree. Okay, so that would be 130 degree plus angle C is equal to 180 degree, and angle C would be equal to 180 degree minus 130 degree, which would be equal to 50 degree. Okay, तो ये वाला एंगल आपका कितने का आ गया है, that is of 50 degree. Okay, now you can recognize that this triangle is, which triangle is this? यहाँ दो एंगल्स जो है वो इक्वल हैं, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल एंड द ऑपोजिट साइड्स वुड आल्सो बी इक्वल, बेस एंगल्स इक्वल हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, सो दैट दिस साइड एंड दिस साइड वुड बी इक्वल। ओके, तो ये जब दोनों साइड्स आपके पास इक्वल हैं और थर्ड साइड आपके पास 20 सेंटीमीटर है, तो हाउ वुड यू राइट इट? हमारे पास टोटल जो है वो लेंथ उसकी गिवन है, यानी अगर हम तीनों को प्लस कर लें तो 30.56 आ जाता है। फर्स्ट आई विल सबट्रैक्ट 20 फ्रॉम 30.56, 30.56 माइनस 20, सो वी कैन गेट द साइड्स AB प्लस BC। इस तरह हमें AB और BC की साइड मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो दैट वुड बी 10.56। ओके, 10.56 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें, और यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू BC। ओके, तो जब आप AB इज इक्वल टू BC करेंगे तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए AB, और BC भी AB के इक्वल है तो ये भी AB आ गया है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2AB इक्वल्स 10.56, और जब हमको AB की वैल्यू मालूम करनी होगी, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB दिया गया है, that would be 10.56 divided by 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 8s are 16, so the value of AB would be equal to 5.28 सेंटीमीटर्स, यानी आपका AB भी 5.28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये AC जो है ये भी 5.28 सेंटीमीटर्स होगा। ठीक है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। This is part B. If lengths of any two sides of a triangle are 5 centimeter and 7 centimeter. ठीक है, एक ट्राइंगल दी हुई है, उसकी दो साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, देन राइट एनी टू पॉसिबल लेंथ्स फॉर द थर्ड साइड। थर्ड साइड हमें दो पॉसिबल लेंथ्स बतानी है। ठीक है, तो देयर इज अ थ्योरम, इफ देयर इज अ ट्राइंगल, ओके, अगर एक ट्राइंगल है ABC, उसको समझ लीजिएगा, और अगर मैं इसके दो साइड्स को ऐड करती हूँ तो हमेशा जो थर्ड साइड होगा वो इसके सम से स्मॉल होगा। ठीक है, देन दैट वुड बी द ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट। यानी अगर मैं AC और AB को प्लस करती हूँ तो जो सम आएगा दैट वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द थर्ड ट्राइंगल। और इसमें एक लॉजिक भी है कि अगर इसके दोनों के सम के बराबर हो जाता है तो ये ट्राइंगल ही नहीं बनने पाएगी। इफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है, then write any two possible lengths for the third side of the triangle। यहाँ पर आपके पास थ्योरम था कि अगर आप टू साइड्स को ऐड कर लें, एक ट्राइंगल की दो साइड्स को ऐड कर लें, तो वॉट एवर इज योर आंसर वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है दोनों को सम लेने से, तो जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी वो हमेशा 12 से छोटी होगी। ठीक है, और या आप इस तरह कह सकते हैं, एक इसी का दूसरा पार्ट है कि अगर आप इन दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करें, ये जो साइड्स हैं 7 - 5 तो दैट इज 2, तो जो आपका इसका आंसर आ रहा है, तो जो आपका थर्ड साइड होगा वो हमेशा इस जो डिफरेंस है इससे हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो असल में जो साइड होगा आपका, जो थर्ड साइड होगा वो वेरी करेगा 12 और 2 के बीच में। ठीक है, तो द थर्ड साइड will be varying in between 2 and 12, okay, 2 and 12, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है 2 से लेके 12 तक। ठीक है, तो that would be a triangle। तो हमारे पास अगर हम उसको आंसर करें तो एक टू पॉसिबल लेंथ्स बतानी है, तो एक लेंथ हम ले सकते हैं 3, ओके,
और दूसरी लेंथ हम ले सकते हैं 3 सेंटीमीटर एंड 12 से छोटा हम ले सकते हैं 9 सेंटीमीटर। इनके बीच में कोई भी दो वैल्यूज हम ले सकते हैं। In the given diagram, find any possible length of AD and justify your answer. ठीक है, तो यहाँ ये आप देख रहे हैं कि this is perpendicular. This AE is perpendicular to BC. तो आपके पास जो इसका एक थ्योरम है वो ये है कि अगर आप outside a line there is a point which is A, ठीक है, outside the line BC जो इसके ऊपर lie नहीं कर रहा है बल्कि बाहर है, तो the shortest distance from this point to this line would be AE and AE would be perpendicular to BC. तो ये shortest distance 9 सेंटीमीटर है। तो जब shortest distance आपके पास if AE is equal to 9 सेंटीमीटर, तो हमेशा अगर आप कोई और डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, इस पे कोई और पॉइंट लेके और उससे अगर आप डिस्टेंस मालूम करना चाहेंगे तो दैट वुड बी ग्रेटर देन 9 सेंटीमीटर। तो पॉसिबल जो इसका लेंथ हो सकती है AD की, दैट कैन बी 10 सेंटीमीटर, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, बट इट वुड बी ग्रेटर देन 9 सेंटीमीटर, इट वुड बी ग्रेटर देन AE, ठीक है, बिकॉज you will write here because this is the reason AE is the shortest distance, because AE is perpendicular to BC. Okay, so this, okay. Now let's go towards 2018 paper, the perimeter of the given parallelogram. This is a parallelogram is 38 centimeter. What is perimeter? Perimeter means the outer boundary, length of the outer boundary. यानी अगर आप BC, CB, BA and AD को प्लस कर लेते हैं तमाम lengths को, तो you will be getting this 38 centimeters. You need to find out the value of x and y. ठीक है, x is the length of AD and y is the angle ABC. इस एंगल को मालूम करना है और लेंथ आपको मालूम करनी है AD, ठीक है। तो there are two unknowns. Let me write over there. There are two unknowns. What are those? X and y. Okay. तो अगर मुझे x की लेंथ मालूम करनी है तो how would I find out? आपको एक लेंथ दी हुई है AB और आपको पेरीमीटर दिया हुआ है which is 38 centimeter. Let me write over here AB plus BC length plus CD length plus DA length. Okay, and that is equal to 38 centimeter. ठीक है, तो ये मैंने इसका पेरीमीटर 38 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया. Now because this is a parallelogram, so AD and BC would be equal. Okay, AD and BC would be equal. So I can write here BC and here also BC, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, और AB and CD, that would also be equal, AB and CD. So I can write it like this, AB, इधर भी AB लिख दूँ और CD की जगह भी हम AB लिख देते हैं. Okay, so that is equal to 38. AB और AB both are of 10 centimeter. यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा. That is BC and plus BC is equal to 38. So that is 2BC. Okay, is plus 20 is equal to 38, and that is 38 minus 20, that is 18. 2BC and BC would be equal to 9 or 18 सेंटीमीटर. ओके, ये आपके पास BC की वैल्यू आ गई है which is x. ठीक है, because this is x, that would also be x. ओके, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है. Now you need to find out the value of y. तो this is of 120 degree. ठीक है, angle on a straight line, sum of the angles on a straight line is equal to 180 डिग्री. तो मैं यहाँ कहूँगी आपके पास एंगल D जो है वो आपके पास, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल. तो अगर आपको y की वैल्यू मालूम करनी है
दिस, इफ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, तो आपका y जो है वो एंगल d के इक्वल है, और एंगल d जो है वो आपके 180 माइनस 120 डिग्री, ठीक है। यानी अगर आप 180 टोटल एंगल में से 120 को माइनस कर दें तो दैट वुड बी दिस एंगल d, ठीक है। तो एंगल d ना कहें, हम इसको कह देते हैं एंगल CDA, ठीक है, CDA, ओके। इसलिए कि एंगल d की अगर आप बात करें तो वो फिर ये 120 डिग्री एंगल भी हो सकता है। सो बी केयरफुल इन दिस केस, आप यहाँ लिखेंगे एंगल CDA, ओके। तो ये आपके पास 180 माइनस 120 डिग्री कितना बन जाएगा, 60 डिग्री एंगल, ओके। सो the value of y would be of 60 degree. This is 60 degree. Okay. So that's there, and this is question number 10. In the following figure, OB and OC are angle bisector. OB is the angle bisector of COA and OC is the angle bisector of DOA, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। Find DOC. We need to find out angle DOC. हमें मालूम करना है DOC. We need to find out this angle, ठीक है। और हमें यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है। If OB is the angle bisector of COA, OB is the angle bisector of OB is angle bisector of OB, then OCA would be equal to, not OCA, then AOC would be equal to double of AOB, ठीक है। and AOB is of 30, so 2 multiplied by 30 is equal to 60 degree. तो आपका ये वाला एंगल जो है that is of 60 degree, that would be, ठीक है। now we need to find out angle DOC. हमें DOC मालूम करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे implies because this is the angle bisector of, कैसे लिखेंगे, OC is the angle bisector of AOD, then DOC equals, DOC किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल AOC, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एंगल DOC वुड बी इक्वल टू एंगल AOC, तो आपका ये एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा। तो DOC वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डायग्राम BC is parallel to DE, BC is parallel to DE, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देयर आर टू ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल आपकी बन रही है ABC और दूसरी ट्राइंगल आपकी बन रही है ADE, एंड यू कैन सी दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो एक आपको एंगल मालूम करना है और एक आपको साइड मालूम करनी है। बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो आई विल राइट इट ओवर हियर एज ABC triangle is similar to ABCAD, ठीक है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो जो उनके साइड्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। पहले हमें ये y मालूम करना है, तो y का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 8 सेंटीमीटर के साथ बन रहा है, ओके। और 6 सेंटीमीटर ये वाली जो लेंथ है इसका रिलेशन इस लेंथ के साथ बन रहा है,
ओके और इसका जो रिलेशन है फुल का ए बी का वो ए डी के साथ बन रहा है. सो आई वुड राइट ओवर हियर लाइक दिस ए बी साइड ए बी अपॉन ए डी ओके इक्वल्स बी सी अपॉन डी. ओके सो नाउ let's put the values. AB की वैल्यू आपके पास क्या है? AB is 8 plus y. Okay, this is 8 plus y. AB की वैल्यू क्या होगी? आपकी AB की वैल्यू होगी AD plus BD. चलें पहले इसको इस तरह लिख लेते हैं. AB की वैल्यू होगी AD plus BD. Okay, and AD equals BC upon D. Now let me write over here AD is 8 plus BD is y upon AD is 8, ठीक है, and BC is 9, DE is 6, ठीक है. Now cross multiply them. 8 plus y, तो 6 से 8 9s are, that is 48 plus 6y equals 72. 6y equals 72 minus 48, ठीक है. 6 minus 4 2, y is equal to 4 centimeters. Okay, so this is the length of y, ठीक है. y की वैल्यू आ गई है. Now we need to find out the value of x. Okay, so because these two triangles are similar and the ratios are same, and in two similar triangles corresponding angles would be same. Okay, अगर ये 50 डिग्री है तो that would also be 50 डिग्री, ठीक है, और x एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा. So how would we find out this एंगल DEA? कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? हम 180 में से माइनस कर देंगे. हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो 50 प्लस 45 प्लस दिस AED लिख देते हैं इसको, AED एंगल, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो AED निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AED equals that would be 95. 180 minus 95, that is 85 डिग्री. ओके, और AED किसके इक्वल हो जाएगा? आपके एंगल x के इक्वल हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू एंगल AED equals 85 degree. That is your answer. This is 2017 question number 9. A parallelogram ABCD. This is a parallelogram. इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल कॉन्ग्रुएंट होंगी. दोनों जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. और थर्ड है कि जो इसकी डायगोनल्स होंगी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है. अच्छा जी, तो आपको पता लगाना है ABC this angle. Okay, you need to find out this angle. Let me remove it first. You need to find out this angle. Okay, कैसे हम इसको मालूम करेंगे? This angle would be equal to this angle. Okay, and you can find this angle ADC by subtracting 35 from 180 degree. Okay, तो हम यहाँ किस तरह लिखेंगे? एंगल ABC equals angle ADC equals 180 degree minus 35 degree, that would be equal to 145 degree. Okay, and angle BAO, where it is? BAO. We need to find out this angle. Okay, how would we find out BAO? BAO को find out करने के लिए we know that this angle would be equal to this angle. Why is it so?
देखिए इसको समझिएगा, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम है, ये दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, दिस इज द ट्रांसवर्सल विच इज कटिंग दीज टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो what it would be, these two angles would be corresponding angles, this angle and this angle would be corresponding angles, and as you know that corresponding angles are equal to each other, ठीक है। तो 35, अब हम एंगल बी ए ओ निकालने के लिए we can write it P B A O निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए हम टोटल 35, ये टोटल एंगल जो है ये 35 डिग्री का होगा। 35 में से अगर हम 10 को माइनस कर दें, वी कैन गेट दिस एंगल, ओके। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 35 डिग्री माइनस 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। अच्छा, नाउ आई हैव रिमूव्ड ऑल द लाइंस फ्रॉम देयर, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपके पास अगेन फिगर मौजूद है, हमें एंगल ओ सी डी जो है वो फाइंड आउट करना है। एंगल ओ सी डी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ आप देखिए कि इसकी जो वैल्यू मैंने निकाली थी दैट वाज 25 डिग्री, बी ए ओ, दिस इज, यहाँ आपकी जो वैल्यू आई थी वो 25 डिग्री थी। कीप इट इन योर माइंड, ओके। हाउ विल यू फाइंड आउट इट? अगर आप यहाँ देखें तो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल विच इज कटिंग दीज टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, these angles would be alternate angles, ठीक है। तो अगर आपको ये एंगल मालूम है तो you can find out this angle also, that would be alternate angles। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, एंगल OCD is equal to angle BOA। what is the reason? BAO, sorry, BAO, and that would be of 25 degree, और आप रीजन क्या देंगे, these are alternate angles, okay। So and now this is the last part, which is angle BCA, where it is angle BCA, this is here angle BCA, 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 okay। the same thing, this angle would be equal to this angle, ठीक है। ये जो आपका 10 डिग्री का एंगल है, ये और ये इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। दिस इज अ ट्रांसवर्सल विच इज कटिंग दीज टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये आपका ऑल्टरनेट एंगल बनता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो दैट इज इक्वल टू एंगल BCA इक्वल्स एंगल CAD इक्वल्स 10 डिग्री, और आप रीजन दे देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। तो ये इस तरह तमाम क्वेश्चंस आपके हो गए, तमाम पार्ट्स। अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ। दिस इज इन द गिवन ट्राइंगल PST। PST इज अ ट्राइंगल, PS is equal to 10 centimeter, PS is equal to 10 centimeter, ST is equal to 6 centimeter, ST 6 centimeter, PR is equal to 2 centimeter, PR is equal to 2 centimeter. Find the length of, हमें लेंथ मालूम करनी है PT, okay, where it is PT, PT, ये टोटल लेंथ मुझे निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PT आपको गिवन नहीं है, RT आपको गिवन नहीं है, PS आपको गिवन है, PQ गिवन है, QS गिवन है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट देयर आर टू ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, एक आपके पास है PQR और दूसरी है आपके पास PST। These two triangles are similar triangles, then the corresponding sides would be proportional। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? I will write it like this, PS upon PQ, okay, is equal to PT upon PR, ठीक है। तो PS की आपकी वैल्यू है 10, PQ की आपकी वैल्यू है 4, is equal to PT की आपकी वैल्यू, you need to find out the value of PT, okay, and PR की वैल्यू आपके पास 2 सेंटीमीटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, that would be 4 PT
equals 2 multiplied by 10 would be 20, and that is PT equals 20 upon 4, 4 5 are 20, 5 centimeters PT की वैल्यू आपके पास आ गई है. ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QR. अब QR की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, यहाँ ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अब हम रिलेशन इसके और इसके बीच में और ये दो रिलेशंस ले लेंगे. ओके, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, वी विल राइट इट लाइक दिस, TS अपॉन QR, okay, is equal to PS upon PQ. What is TS? TS is 6. QR we are going to find out, so let's write it as it is equal to PS 10 and PQ 4. Cross multiply them, that is 10 QR equal 24. Okay, and QR would be equal to 24 upon 10 is equal to 2.4 centimeters. Okay, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया. Now let's go towards, I think this is the last part of 2015. ठीक है, sorry 2017. यहाँ आपके पास है, in the given triangle ABC, AB is equal to 8 centimeter, AB is equal to 8 centimeter, and AC is equal to 4 centimeter, AC is equal to 4 centimeter. D is perpendicular bisector of AB and AF. DE, D is the perpendicular bisector of AB. Okay, here perpendicular bisector means like this, both the angles would be of 90 degree, and AF is the angle bisector. AF जो है वो आपने, ये जो है ये angle bisector है, it means that both the angles would be x. अगर ये x है तो ये भी x होगा. is the angle bisector of BAC. Okay, find angle CAB. मुझे find out करना है angle CAB in terms of x. मुझे CAB की वैल्यू मालूम करनी है, तो because it is the perpendicular bisector, तो आपके पास दोनों x आ जाएगा, तो that would be 2x. Okay, x plus x would be 2x. This is in terms of x आपको मालूम करना था, तो ये आपने मालूम कर लिया. Find the length of DB. You need to find out the length of DB. आपको DB की length find out करनी है, because this is angle bisector. ED is the angle bisector, तो ये इसका mid point होगा. ठीक है, AB का ये sorry side bisector है. This is perpendicular bisector of AB है. ठीक है, DE is the perpendicular bisector of AB है. ठीक है, तो D is the mid point of AB. ये mid point होगा. टोटल आपका इसकी लेंथ 8 है, तो 8 को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो आपके पास DB निकल जाएगा. तो दैट वुड बी DB इज इक्वल टू AB बाय 2. ठीक है, दैट इज 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स.